Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today is our 6th lecture. Today we will cover some basic transformations which we will go in detail and some mathematical equations. But before going into that, we have to have some summary from the previous lecture so that we remind all the things and then we can build upon it. So in the last lecture, what we studied is a different of distance measures. So there were different types of distance measure. Some of them were chessboard, and some of them were like diamond shape, and that we call it Manhattan distances, and other there were some basic distances. So we learned some of the distances, and then after that we learned that what is the use of this distance, so the application of it. And for that we learned that if we want to compare two different images or figures, then we have to have some basic idea of the skeleton, because if we compare image to image or figure to figure, then it's a lot of computation and it will take a lot of time. And for mathematical operation, it's also time consuming. So what we can do, we can take some basics, basic or the features from this image or the figure. Then we can compare these features accordingly, and we can also have some basic idea how to have the feature extraction in that situation. So for that we learned that how to have a skeleton of the image, or what we can call it as a skeleton, and that we have to find out the distance measure through the distance measure, and then after that we represent this image or the figure with some basic lines that are easy to distinguish and easy to compare, because it's lines, and it gives us a basic information of intersections of different lines, portion, and also angles of different lines, and also the length of the lines that we can compare it with each other. So this we learn in the basic distance measure methods. So we can apply, once we apply these measures, then we have the comparison. And after that we also learn some arithmetic and logic operation on images, that if you want to apply some arithmetic operation, because we are in a digital world, and then once we have a digital image, then it's represented by numbers, and then every image has a location and every point has a location in a 2D, so then we can perform arithmetic operation on it. So we can have addition, we can have subtraction of different locations, and these locations can be pixels, and this can be also figures. And then also some logical operations. So if we want to take AND of two images, what it means, and if we want to take OR of two images, what it means, and XOR, and same other logical operations. So we also learn that. And after, in the end, we also learn that if we have neighbors information, which is already from the pixel neighbor, we have it. So if we use this neighbor information and we want to apply it into some specific pixel, then how do we do it? So for that we also learn that if we do it directly on the image, it's also possible. But if we use some template, and this template we take it and we take the values accordingly from the figure, and then we apply or make the arithmetic operation and put it on the some specific part. So if you remember, we also said that if we have a template, then we will use the values which are in the center of it. So if it is a 3x3 matrix or a template type, and then on the middle portion we will apply this all the neighbors information. आपको याद है कि हमने क्या किया था कि
हमारे पास एक टेम्पलेट हमने लिया था जो नॉर्मली हम एक टेम्पलेट लेते हैं जो कि हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। और हमने ये बताया था कि अगर हम कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जो लोकेशन P होगी, यहाँ पर जो भी इसके अंडर पिक्सल आ रहा होगा हम वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और अब अगर हमारे पास इमेज है तो चूंकि वो भी हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा और हम एक ग्रिड में रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो हम करते क्या है कि इस टेम्पलेट को हम लेते हैं और वो अप्लाई करते हैं एग्जैक्टली हम वहाँ पर जहाँ हमें वैल्यूज़ चाहिए। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस वैल्यू को चेंज करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस P को हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम करेंगे क्या कि इस P को इसके ऊपर ले आते हैं और एग्जैक्टली ये लोकेशन इधर आ जाएगी। तो इसके नाइबर्स कौन कौन से आ सकते हैं, फिर हमारे पास एक ये नाइबर आ जाएगा, ये और ये वाले, और बाकी जो हैं वो एम्प्टी रह जाएंगे। तो हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो मतलब ये कि बाउंड्री पे तो हमारे पास सारे नाइबर्स नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब हम किसी मिडिल पोजीशन पे होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैं हम, तो अगर हम अब यहाँ पर टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं तो टेम्पलेट एग्जैक्टली सारे वैल्यूज़ उसके आ रहे होंगे। तो हम नॉर्मली जहाँ भी हमारे पास, तो अब हमारे टेम्पलेट कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा टेम्पलेट इन वैल्यूज़ में आ जाएगा। तो अब ये जो नाइबर्स की इंफॉर्मेशन है हम इसको लेकर यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये, और दूसरी सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पर आएगा वो टेम्पलेट। तो हम क्या करते हैं कि हम उस टेम्पलेट को आगे लेकर जाते हैं और मूव कराते जाते हैं। तो अगर ये हम लेते हैं इस तरह, तो अब हम करते क्या है कि इस टेम्पलेट को आगे लेकर जाते हैं और इसी तरह से हम वैल्यूज़ चेंज करते जाते हैं। तो फिर हम P को यहाँ ले आते हैं, फिर हम P को इधर ले आते हैं और सेम इसी तरह मूव करते जाते हैं। तो ये टेम्पलेट का फ़ायदा है हमारे पास कि हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं और हम ओरिजिनल जो बैकग्राउंड पे है हम उसको चेंज नहीं कर रहे होते। तो हम इस टेम्पलेट को सेट कर लेते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, तो वो बहुत इजीली हो जाता है और हम उसको आगे मूव कराते जाते हैं। हम आगे इसको सीखेंगे, लेकिन ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने टेम्पलेट से रिलेटेड ये स्टडी किया था कि अगर हम टेम्पलेट लें तो वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो आज के लेक्चर की तरफ हम आते हैं कि आज हम क्या देखेंगे। तो मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हम देखेंगे, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उनमें हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग। तो पहले हम सीखेंगे 2D में और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 3D में हम एग्जैक्टली ये ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमने इन्वर्स लेना है ट्रांसफॉर्मेशन का, रोटेशन का, स्केलिंग का और ट्रांसलेशन का, तो वो हम कैसे ले सकते हैं। इन्वर्स का हम मतलब यहाँ ये लेंगे कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को या किसी पिक्सल को मूव कराया एक जगह से दूसरी जगह पर, या किसी पॉइंट को मूव कराया इमेज में, तो अगर हम उसको वापस लाना चाहते हैं अपने ओरिजिनल लोकेशन पे, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आज जो हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, क्योंकि ये हम 2D की सिचुएशन में हम लेते हैं, तो हम 2 डायमेंशनल x और y है हमारे पास वैल्यूज़। ये हमारे पास हो गए x और y, डायरेक्शंस हो गए x एक्सिस। तो अब अगर हमारे पास एक P पॉइंट है और उसको हम ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, ट्रांसलेट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि हम अगर उसको मूव कराना चाह रहे हैं इस लोकेशन पर, तो वो हमारे पास हो जाएगा P प्राइम। तो इसको हम
इमेज प्रोसेसिंग की टर्मिनोलॉजीज़ में हम इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, कि हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी लोकेशन पर। और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये क्या आ सकते हैं, हमारे पास p की वैल्यू आ सकती है कि ये कोई एक x और y लोकेशन में है, और हम इसको लेकर जाते हैं x प्राइम और y प्राइम की लोकेशन पर। ठीक है, तो ये हम अगर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कोई फीचर वेक्टर होगा जिसकी मदद से हम इसको लेकर जा रहे हैं। मतलब हमने जो ये डिस्प्लेसमेंट की है, यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो वो क्या वैल्यू थी, वो हमारे पास हो सकते हैं x0 और y0। तो ये जो हमारे पास वेक्टर है जिसकी बेसिस पे हम इसको यहाँ से यहाँ लाए हैं, तो वो वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं। और ये नई लोकेशन का एड्रेस हो गया, ये जहाँ से स्टार्ट लिया था, और ये वो वैल्यूज़ हैं जिसकी बेसिस पे हमने इसको मूव कराया। तो अब इसके लिए हम क्या फार्मूला बना सकते हैं कि बेसिक क्या हो सकता है, ये कि हमने जो ट्रांसलेशन की है वो किस तरह है, x, तो x प्लस x0, और y प्राइम क्या है, y प्लस y0। मतलब ये कि अगर हम इसके साथ ऐड करते हैं तो हम एग्जैक्टली x प्राइम पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। x के साथ x की जो भी वैल्यू है उसके साथ x0 की वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो हम उस लोकेशन पे चला जाते हैं। और y प्राइम के साथ अगर हम y और y प्लस y0 की वैल्यू हम दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास y प्राइम आ जाता है। अब हम करते क्या है कि हम इस ट्रांसलेशन को हम लाते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। और नॉर्मली हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इस वजह से लाते हैं कि क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स नहीं होते और हम मोर लेस इमेजेस के साथ मोस्टली खेलते रहते हैं और उनको मूव कराते हैं या उनकी ट्रांसलेशन करते हैं, रोटेशन करते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है कि वो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में हो, क्योंकि वो एक पॉइंट नहीं होगा, वो मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। तो अगर मल्टीपल पॉइंट्स हैं तो हम उसको अगर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इजीली कैलकुलेशंस उसकी हो सकेगी और हम उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो अब हम करते क्या हैं कि हम ये जो ट्रांसलेशन की इक्वेशन हमने बनाई है, हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लाते हैं। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे लाएंगे, ये आ जाएगा x प्राइम, y प्राइम, और ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई उसकी। अब हम इसमें एडिशन करते हैं एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स की, वो अभी आपको जा जाएगी x और y जो ओरिजिनल लोकेशन है प्लस x0 और y0। सो ये हमारे पास क्या हुआ, हमने एडिशन हम कर रहे हैं x और y0 की, और हमने साथ में एक कॉलम दूसरा ऐड किया जिसमें हमारे पास आइडेंटिकल कॉलम है। मतलब ये कि अगर हम इसको रिमूव कर दें तो ये हमारे पास एग्जैक्टली इसी तरह x और y रह जाएंगे, तो ये कोई असर नहीं इससे पड़ेगा। लेकिन ये हमें आगे इसकी ज़रूरत है ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें। अगर हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं तो हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, तो उसके लिए हम इसको ऐड करते हैं। तो अब ये हमारे पास बेसिक आ गया कि अगर हम इसको लेते हैं कि x और y एक्चुअली क्या था, ये यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x प्राइम इज इक्वल टू x प्लस x0 और y प्राइम इज इक्वल टू y प्लस y0। तो ये हमारे पास बेसिक इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि हम इसको अगर लाते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में तो वो एग्जैक्टली इस तरह सिचुएशन उसकी बन जाती है। अब अगर हम इसको
कंबाइन करते हैं तो क्योंकि हम मैट्रिक्स कैलकुलेशन करें सिंपली इसके ऊपर, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको लेते हैं x प्राइम y प्राइम is equal to 1 0 x naught 0 1 y naught और लेते हैं x y और 1। तो अगर हम मैट्रिक्स कंप्यूटेशन करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं। और ये एग्जैक्टली किस तरह काम करती हैं कि अगर हम लेते हैं x प्राइम ले रहे हैं हम, तो x प्राइम हमारे पास क्या है x प्लस 0, क्योंकि अगर हम ये लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 के साथ, तो 1x ही आ जाएगा, तो x प्लस 0 आ जाएगा और प्लस x नॉट आ जाएगा। तो मतलब ये कि ये हमारे पास एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमने स्टार्ट में लिया था, x प्लस x नॉट लिया था। और y की सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा y 1 0 प्लस y प्लस y नॉट। तो ये एक्चुअली क्या था, ये हमारे पास y प्लस y नॉट और ये जो है ये x प्लस x नॉट। तो मतलब ये कि इससे कोई असर नहीं पड़ा, हमारे पास एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब ये अगर हम देखें तो ये कोई सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है, एसिमेट्रिक फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन अलग हैं और यहाँ पर डायमेंशंस अलग आ रही हैं। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको सिमेट्रिक या यूनिफॉर्म फॉर्म में लाना चाहिए। ठीक है, हमारे पास है x प्राइम y प्राइम एज अ मैट्रिक्स and equal to 1 0 x naught 0 1 y naught और हमारे पास यहाँ वैल्यूज है x y और 1। अब ये क्योंकि यूनिफॉर्म फॉर्म में नहीं है तो हम इसको यूनिफॉर्म कैसे लाते हैं कि हम इसमें एक और वैल्यू 1 की ऐड कर लेते हैं। वन 0 x नॉट 0 1 y नॉट और 0 0 1 और उसके बाद एग्जैक्टली सेम ये आ जाएगा x y और 1। तो अब ये हमारे पास यूनिफॉर्म सिचुएशन में आ गया। सो व्हाट डिड वी लर्न, वी हैव द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट x y of the point P which is appended with one more component that is given as 1. And if this modified coordinate is now transformed by a transformation matrix which is given as 1 0 and x naught and then 1 0 y naught and 0 0 1, then I get the translated point as x prime y prime 1, where if we just neglect the additional component which is 1, then we get the translated point P, P prime. So this is all about the translation. अब हम जाते हैं रोटेशन की तरफ कि अगर हमने किसी पॉइंट को रोटेट करना है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे,
हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 डायमेंशन, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और हमारे पास एक पी पॉइंट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम लेकर जाना चाह रहे हैं, मतलब हम इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं रोटेट करना चाह रहे हैं इस लोकेशन पर। तो अब अगर हम ये रोटेशन जो है वो किसी एक एंगल की बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी प्राइम आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, तो हम लेते हैं यहाँ से, अगर हम इसका एंगल लें तो हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका एंगल आ जाएगा। और अगर हम इसको देखें कि एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये उसके एक्स एक्सिस आ जाएगा, और ये उसके यहाँ से लेते हैं वाई एक्सिस आ जाएंगे। अब अगर हमने इसको रोटेट करना है पी प्राइम के ऊपर, इसकी वैल्यूज़ भी हम ले लेते हैं। अगर यहाँ पर ये एक्स और वाई आ गई, ठीक है, तो पी प्राइम के सिचुएशन में क्या होगा, एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये उसकी रोटेशन होगी। तो अगर इसको हम लेते हैं यहाँ से, तो ये होगा एक्स प्राइम वाई प्राइम, और ये आ जाएगा, गलत हो गया, फिर एक्स प्राइम आ जाएगा। तो ये एक्स प्राइम आ गया और ये वाई प्राइम आ जाएगा। अब जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा थीटा। अब हम इसका एंगल लेते हैं, तो एंगल हमारे पास जो हमने रोटेशन की है वो यहाँ से यहाँ तक है, और वो आ जाएगा थीटा। तो अगर हम इसको फॉर्मुलेट करें तो हम इसको देखते हैं कि x हमारे पास क्या आ रहा है, x लोकेशन है उसकी r कोसाइन अल्फ़ा। अब ये r हमारे पास एक्चुअली यहाँ से जो हम पॉइंट ले रहे हैं ये हमारे पास r आ जाएगा, ठीक है, इसको हम लेते हैं एज अ r। और y क्या आएगा, r साइन अल्फ़ा। अब ये हमारे पास आ गए हैं इसके लोकेशन अकॉर्डिंग टू इस ओरिजिन पॉइंट, ये r की वैल्यू अगर हम लेते हैं। और अब इसके बाद हमारा मकसद क्या है कि हम ये वाले वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करें, तो वो हमारे पास क्या आएंगे, x प्राइम इज़ इक्वल टू r कोसाइन अल्फ़ा माइनस थीटा and y prime is equal to r sin alpha minus theta। तो अब ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई कि अगर हमने ये वाली लोकेशन जो रोटेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है कि हमने कितनी रोटेशन की, तो उसकी वैल्यूज़ हमारे पास ये आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, कि हमने उससे ओरिजिन से कितना उसको रोटेट किया। तो हमने सिंपली जो अल्फ़ा और थीटा हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमें उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो इफ़ वी एक्सपेंड दिस इक्वेशन simply, then we have x prime is equal to r
cosine alpha minus theta. So if we expand this, then how it will be, and for y we also have a y prime is equal to r sine alpha minus theta. So if we simply expand this cosine term, it will be r cosine alpha cosine theta plus r sine alpha sine theta. Now we know that r cosine alpha is nothing but x. R cosine alpha is x. So it becomes cosine r cosine theta and plus r sine alpha is nothing but y. R sine alpha is nothing but y sine theta. And in case of y prime, what we do, it becomes r sine alpha cosine theta minus r cosine alpha sine theta. So again, r sine alpha is nothing but y. So this expression y it's become y cosine theta minus, and this r cosine is x sine theta. So again here we find that x prime give by x cosine theta plus y sine theta, and y prime is given by minus x sine theta plus y cosine theta. So now if we want to represent this in a form of a matrix, then how we will do it? So we take x prime, y prime is equal to cosine theta sine theta minus sine theta cosine theta and x or y. So even now if we represent this in a form of a matrix equation, it becomes simply x prime y prime is equal to cosine theta sine theta, then minus sine theta cosine theta, and then we have original coordinate as a xy. So here you find that if we rotate the point P by an angle theta around the origin in a clockwise direction, in
that case the transformation matrix which gives the rotation transformation is given by particular matrix which is cosine theta sine theta minus sine theta cosine theta. Now in the same manner, if we want scaling, for example we have a scaling vector Sx, the direction maybe we can set Sx. So this is the scaling of x and scaling of y. So how do we do it? So we have a simply scaling vector Sx and Sy in a direction y for sure, and this one in a direction of x. So what we do, we take simply x prime and y prime, which are the difference, is equal to Sx 0 0 Sy. X or y, which are the original coordinates. So here the transformation matrix for performing the scaling operation is nothing but the matrix Sx naught 0 and 0 Sy. So there are simple transformation that we can have in 2 dimension. Now it is possible to concatenate a transformation. For example, here I have considered the rotation of point around the origin. If my application demands that I have to rotate the point P around the arbitrary point Q in 2 dimension, then find out the expression for this rotation point P by the angle theta around another point Q is not as easy job. So what we have to do, we have to have another expression. So we can simply operate the 2 things, or we can combine 2 things. So one is translating the point Q to the origin, and then the point P also have to be translated by the same vector, and after performing the translation we can rotate the point P by the same angle theta, and now it will be rotated around the origin. So expression that we have is cosine theta sine theta minus sine theta cosine theta, the same transformation matrix application, and after getting this rotation, now you translate back the rotated point by the same vector but in opposite direction. So how do we do it? We can check it now. तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है P और एक है Q. तो अब मैंने क्या करना है कि इसके लिहाज से मैंने इसको रोटेट करना है, इस P को. तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपली अगर इनके एंगल्स निकाल लूँ और मुझे पता चल जाए कि ये कहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो अब मैं करता क्या हूँ कि पहले इसको ट्रांसलेट करता हूँ यहाँ से यहाँ पर, और जब ये ट्रांसलेट कर लूँ तो इसका जो एंगल होगा उसके लिहाज से मैं इसको चेंज कर लूँगा, P को चेंज कर लूँगा, जो इसके अगेंस्ट जो भी हमारे पास इसका एंगल आएगा तो हम उसके लिहाज से इसको चेंज कर लेंगे और फिर वापस इसको ट्रांसलेट कर लेंगे अपनी लोकेशन पे. तो जब हम ट्रांसलेट कर लेंगे वापस, तो क्योंकि वो चेंज हो चुका होगा इसके अगेंस्ट, जितना भी डिफरेंस हमने लिया होगा, तो वो जब वापस अपनी जगह पर जाएगा तो वो रोटेशन के साथ हुआ होगा. अब अगर हमने दोनों काम इकट्ठे करनी हो, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, कि मतलब हमने एक लोकेशन पे जाना है, उसको ट्रांसलेट करना है और फिर उसके बाद हमने उसको साथ में रोटेट भी करना है जब वो एक लोकेशन पर पहुंच जाए. तो वो कैसे, मतलब हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास x और y हैं, तो मैंने क्या करना है कि मेरा ये एक P पॉइंट है और इसको मैं पहले ट्रांसलेट कर रहा हूँ. ट्रांसलेट का मतलब ये कि मैं यहाँ P प्राइम पर आना चाह रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रोटेट भी कर रहा हूँ साथ में. तो पहले ट्रांसलेट किया,
ठीक है, यहाँ से यहाँ है, और फिर उसको इसकी रोटेशन की, तो रोटेशन जो है वो इसके अगेंस्ट होगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका यहाँ से थीटा निकालेंगे कि वो थीटा वैल्यू क्या है हमारे पास। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अगर सिंपल देखें, अगर हम ट्रांसलेशन को टी से रिप्रेजेंट करें और रोटेशन को आर से, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आएगा टी माइनस आर आर थीटा टी आर पी। तो अब ये हमारे पास उसका फार्मूला आ जाएगा कि हम पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर पॉइंट पी को, और फिर हम उसको रोटेट करते हैं, और जब रोटेट करते हैं तो उसको वापस लेकर जाते हैं जहाँ से हमने उसको ट्रांसलेट किया होता है। तो टी माइनस आर वापस उस जगह पर हम चले जाते हैं। अब अगर हमने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको अप्लाई करना है, तो हमने तो सिंपल 2D के लिए देख लिए कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन 3D सिचुएशन में हमें क्या करना होगा। हमारे पास ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग तीनों चीज़ें हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे अब डायमेंशंस 3D में। तो 3D के लिए हमारे पास क्योंकि हम x और y ले रहे थे पहले, तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसमें x, y और z. So we have three coordinate x, y and z, and all these three coordinates we have translation, and for that translation what we can use x star for it, and the vector that we are using is x naught, y naught and z naught. So this is the value with which we are translating it, and the actual location will be now x star. तो हमारे पास अब 3D कोऑर्डिनेट में x, y और z भी आ जाएंगे। अब अगर हम लेते हैं मैट्रिक्स फॉर 3D ट्रांसलेशन, तो अब पहले हमारे पास सिंपली x और y वैल्यूज थे, अब उसमें हमारे पास z भी आ जाएगा। तो z चूंकि आ जाएगा, तो हमारे पास x स्टार क्या होगा, 1 0 0 x नॉट, और y स्टार क्या होगा, 0 1 0 y नॉट, और z स्टार होगा 0 0 1 z नॉट। और हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं x y z, और हमने एक एडिशन 1 उसके साथ कर दिया। तो अब हम ये देखते हैं कि ये क्योंकि यूनिफॉर्म सिचुएशन में नहीं है, इनके जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट हैं। तो अब हम इसको यूनिफॉर्म कैसे लाते हैं कि हम यहाँ पर इस के साथ एक 1 और ऐड कर लेते हैं। तो जब हम इसके साथ 1 ऐड करते हैं, तो हमें यहाँ पर भी एक 1 ऐड करना है, ताकि ये जो तीनों हैं आपस में यूनिफॉर्म सिचुएशन में आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास आ जाता है a स्टार इज इक्वल टू 1 0 0 x नॉट, और y स्टार इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 y नॉट, एंड z स्टार इज इक्वल टू 0 0 1 z नॉट, एंड 1 इज इक्वल टू 0 0 1। और जो ओरिजिनल हमारे पास है x y z की लोकेशन, तो हम वो ले लेते हैं, और हमारे पास यहाँ 1 हम उसको लेते हैं। सो नॉर्मली हम ट्रांसफॉर्मेशन को t से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम आगे इसको यूटिलाइज करते हैं। सो इफ यू हैव अ वेक्टर v, position vector v which is translated by the transformation matrix A. Okay, the transformation matrix A is a 4x4 transformation matrix. V, the original position vector, was x, y, z, and we have added 1 into make the uniform matrix. So V now a 4-dimensional vector having components x, y, z and 1. Simply the transform position vector V star is also a 4-dimensional vector. तो ये हमारे पास जो V है वो हमारे पास अब आएगा x, y, z और 1 की सिचुएशन में, और जो V स्टार है जो हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम उसको देखते हैं, तो वो क्या है, x स्टार, y स्टार, z स्टार एंड 1 हमने उसको
यूनिफॉर्म करने के लिए बनाए। नाउ अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 3D की सिचुएशन में क्या बनेगी? t इज इक्वल टू 1 0 0 x नॉट और 0 1 0 y नॉट, 0 0 1 z नॉट और 0 0 0 और 1 आ जाएगा। ये जो हमारे पास यूनिफॉर्म करने के लिए हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम स्केलिंग अगर करना चाहेंगे तो स्केलिंग भी हम सिंपली उसी मैट्रिक्स को हम एक्सटेंड कर देते हैं और उसमें हम साथ में एक एक्स्ट्रा 1 यूनिफॉर्म करने के लिए लगाते हैं। तो स्केलिंग ऑफ एस एक्स एस वाई एंड एस जेड अलॉन्ग एक्स वाई जी एक्सिस इज गिवन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। क्या होगा? एस एक्स 0 0 0 0 एस वाई 0 0 फिर 0 0 एस जेड और 0 आ जाएगा और फिर 0 0 0 और 1 उसको यूनिफॉर्म करने के लिए। सो इफ वी रिमूव द लास्ट कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू 1, what we get is the scale 3D coordinates of point which has been scaled up or scaled down. So in situation of rotation, 3 different rotation matrices for representing rotation around the particular axis, and specifically if the rotation is to be done about the arbitrary point, then what we have to translate the arbitrary point to the origin by using the translation transformation. Then we have to perform rotation around, then we have to translate back the point to the original position. तो जो हमने x y कोऑर्डिनेट में किया था, अब हम वो 3D कोऑर्डिनेट में x y z की सिचुएशन में भी वही करेंगे। हम पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं। अगर तो हमने किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के साथ उसको रोटेट करना है, मतलब ये कि हमने P और Q पॉइंट्स है हमारे पास दो, और हमने Q के अगेंस्ट P को रोटेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? हम पहले उसको ट्रांसलेट करेंगे Q की तरफ, और जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो उसके एंगल के हिसाब से हम P को रोटेट कर लेंगे, और जब हमने उसको रोटेट किया तो हम उसके बाद वापस उसकी ट्रांसलेशन बैक करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स जो है इसका डिफरेंट बनेगा, उसकी वजह यह है कि 3D है हम हमारे, और 3D के लिए हम जब मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो डिफरेंट इस वजह से बनेंगे कि जिस के अगेंस्ट हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूज 0 रहेंगे, वो चेंज नहीं हो रहे, तो हम उसको स्टेबल बना देते हैं और बाकी जो हैं वो मूव हो रहे होते हैं। तो अगर हमने Z के अगेंस्ट रोटेशन करनी है, Z एक्सेस के अगेंस्ट, तो हमारे पास बनेगा R थीटा रोटेशन उसकी आएगी, और कोसाइन थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा, ये तो एग्जैक्टली वही हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स बन रहा है, और बाकी जो है हमने उसके वैल्यूज़ रखे हैं ताकि वो यूनिफॉर्म रहे। और अगर हम रोटेट करना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस के अगेंस्ट तो वो बनेगा R अल्फ़ा, और वो बनेगा इसी तरह के 1 0 0 0 एंड 0 कोसाइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा। तो ये हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमारे जो लोकेशन है उसकी वो हमने चेंज कर दी क्योंकि एक्स के अगेंस्ट हम रोटेशन कर रहे हैं, और जब वाई के अगेंस्ट करेंगे तो वो आएगी R बीटा, और उसमें हमारे पास इनके लोकेशंस चेंज हो जाते हैं। तो हम अगर सिर्फ Z के अगेंस्ट कोऑर्डिनेट्स को हम Z के अगेंस्ट चेंज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में X और Y के वैल्यूज़ चेंज होंगे, और बाकी Z के वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि Z के अगेंस्ट कोई चेंजेस नहीं आएंगी। The same transformation which we have done for rotation a point in 2 dimension in x y coordinate, the same transformation metric holds true for rotating this point in 3 dimension along the z axis. But we know that because the number of component in our position vector is more, we have to take care of the other components as well. अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इनको कंकेटिनेट करते हैं तो वो किस तरह होगा? टू कंकेटिनेट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस दैट इज ट्रांसलेशन स्केलिंग एंड रोटेशन,
if we want to rotate point about z axis, then the translation, scaling and rotation, this can be concatenated as, so what we have to do, we have to first translate the point v by the translation operation t. So what we do, we take the point v and we first translate it. So this is the translation, and then after that we perform scaling. So once we have the scaling, then we can have the rotation. अब अगर हम तीनों काम इकट्ठे करना चाह रहे हैं, तीनों में हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले उसको रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और स्केलिंग करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करें वेक्टर v को या पॉइंट v को, और फिर उसके बाद हम उसको स्केलिंग करें और फिर उसके बाद हम उसकी रोटेशन करें। तो ये जो तरतीब है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। All these three different transformation metrics, that is r theta, s theta and t, all of them being 4-dimension matrix, can be combined into single matrix, say single transformation matrix A. अब हम क्या करते हैं कि हम अगर इन तीनों को सिंपली A में ले आएं, जिसको हम रिप्रेजेंट करें कि हम ऑल के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि हम सारे तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। बट द प्रोडक्ट ऑफ आर थीटा एस एंड टी, अगेन ए विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन 4x4। अब अगर हम ए लेते हैं तो ए हमारे पास क्या है, वो 4x4 का मैट्रिक्स बन जाएगा। So the important note is the case of concatenation of transformation in order in which these transformations are to be applied is very important, because these matrix operations are in general not commutative. तो अब ये बहुत अहम बात है कि जिस ऑर्डर में हमने इसको मेंशन किया है, ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको इस ऑर्डर में नहीं करेंगे कि सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करें, फिर उसके बाद स्केलिंग करें और फिर रोटेशन करें, तो उसकी बजाय हमारा रिज़ल्ट जो है वो बहुत डिफरेंट आएगा। जो हम डिज़ायर्ड ऑपरेशन हम चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली उस तरह नहीं होगा। इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। अगर तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, सॉरी हमारे पास एक v पॉइंट है जो यहाँ पर हमने v से रिप्रेजेंट किया, और इस v को हम उसके साथ ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं a, और a एक्चुअली क्या है, वो हमारे पास ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन है। तो अगर हम इसको किसी और तरीके से करेंगे तो क्या होगा, तो पहले हम ये लेते हैं कि हमारे पास ये v पॉइंट है, हम इसको लेते हैं। तो v1 के साथ अगर हम इसको करें कि हम पहले उसको ट्रांसलेट करें और फिर हम उसको रोटेट करें, तो वो कैसे होगा कि हम यहाँ से v लेते हैं, तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे पास ट्रांसलेशन का जो वेक्टर है वो ये है कि हम इसके अगेंस्ट सेम जो ये डायरेक्शन में है हम इसी तरह उसको ट्रांसलेट करें। तो हम करेंगे क्या कि हम v को ट्रांसलेट करेंगे, तो हम यहाँ से आ जाते हैं इस पोजीशन पर, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्या परफॉर्म किया, t और v हमने परफॉर्म किया। तो हम यहाँ पर आ गए, तो हमने ये ट्रांसलेशन परफॉर्म की, ठीक है, t और v की। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन आ गई उसकी। और अगर हम इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर रोटेशन परफॉर्म करते हैं, तो रोटेशन जो होगी उसकी, वो इसके अगेंस्ट जो एंगल बनेगा उसका हम वो रोटेशन लेते हैं, ठीक है। तो हम वो रोटेशन हम यहाँ से अब आ गए हैं इस लोकेशन पर, तो ये हमारे पास वो रोटेशन वाला आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ पर आ गए। तो ये अब हमने कौन सा परफॉर्म किया, अगर हम v1 लेते हैं, v1 की सिचुएशन में, तो रोटेशन हमने बाद में की और हमने पहले ट्रांसलेशन की। अब हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले रोटेशन करते हैं और फिर बाद में ट्रांसलेशन करते हैं। तो अगर हमारे पास ये v पॉइंट है, हम इसको रोटेट करते हैं, तो रोटेट करेंगे तो पहले हम आ जाएंगे जो हमारे पास एंगल है उसकी बेसिस पे, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा आर वी का, हमने पहले रोटेट किया
और उसके बाद हमने ट्रांसलेशन का जो वेक्टर था ये वाला एग्जैक्टली इसको हमने अप्लाई किया, तो हम उसको ट्रांसलेट करके उस जगह पर ले गए। तो ये जो रोटेशन थी ये हमारे पास ये वाला एंगल बन रहा है, तो इसके अगेंस्ट हमने उसको रोटेट किया और फिर हमने बाद में उसको ट्रांसलेट किया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। मतलब एक में हमारे पास आउटपुट यहाँ आ रहा है और दूसरे में हमारे पास आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें ये बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी कि हमारा जो फार्मूला है हम इसी को फॉलो करें, और अगर हमने इसके अगेंस्ट दूसरे तरीके से किया तो रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे और हम देख रहे होंगे कि कहीं हमने कहीं और गलती की है, लेकिन एक्चुअली हमने गलती यहाँ पर उसके फार्मूले में की होगी कि अगर हमने पहले ट्रांसलेशन ना की फिर उसके बाद स्केलिंग ना की और रोटेशन ना की, तो अगर ये इस तरतीब से ना होगा तो हमारे पास रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म सेट ऑफ पॉइंट्स अगर करें, अगर हम मल्टीपल पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं P1, P2, P3, P4। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको ट्रांसलेट करना है किसी दूसरी लोकेशन पे। अगर हम इसको लाते हैं फॉर एग्जांपल हम इसको कनेक्ट कर लें तो इजी हो जाएगा विजुअलाइजेशन में। अगर ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और हम इन सेट ऑफ पॉइंट्स को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं किसी और लोकेशन पे, यहाँ पर हम आ गए, हमारे पास जो वेक्टर है जिसके बेसिस पे हम इसको चेंज कर रहे हैं वो v आ गया, ठीक है। तो v1 प्राइम हो जाएगा, v2 प्राइम, P3 प्राइम, सॉरी ये है P4 प्राइम। तो ये हमारे पास वो वाली वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अगर हमने इसके अगेंस्ट इसको ट्रांसलेट करना है तो ये हमारे पास वो ट्रांसलेशन वेक्टर है। तो हमने इसके लिए क्या करना है, हमने बजाय इसके कि हम हर एक को इंडिविजुअल करें तो हम उसके लिए पूरे सेट ले सकते हैं। अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑल द पॉइंट्स सिमल्टेनियसली रादर देन अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन इंडिविजुअली पॉइंट बाय पॉइंट और वन बाय वन। So for set of m points we have to construct a matrix V of dimension 4 by m. That every individual point will now be considered as a column vector of this matrix, which is dimension of 4m, and then apply the transformation A to this entire matrix. And transformation, after this transformation we get the new matrix V star, which is given by the transformation A multiplied by V. So at any particular column, ith columns in the matrix V star, which is Vi star, is the transform point corresponding to the ith column of the matrix B, which is represented Vi. तो ये हमारे पास सिंपली हम क्या करते हैं कि उसको 4 by m लेते हैं कि हमारे पास, क्योंकि 3D में हमारे पास 4 कॉलम्स होते हैं और 4 ही हमारे पास नॉर्मली हमारे पास रोज़ जो हैं हम उसको मल्टीपल कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि हम इन्वर्स देखते हैं कि अगर हमने किसी का इन्वर्स लेना है और वापस हम उस पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली वापस जाने के लिए हम वहाँ पर वैल्यूज़ माइनस कर देते हैं। तो अगर हम माइनस कर देंगे तो हम वापस अपने ट्रांसफॉर्म लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। If we had translate a point by a displacement vector v,
then inverse transformation should bring back the point to the origin point. If a vector v, then inverse translation should be a vector minus v. अगर हम v वेक्टर के साथ उसको ट्रांसलेट करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन की भी हो सकती है, वो स्केलिंग की भी हो सकती है, और साथ में वो ट्रांसलेशन की भी हो सकती है. तो अगर इन तीनों में से कोई भी हो तो हम उसको अगर माइनस में कर देंगे तो हम वापस उस लोकेशन पे आ जाते हैं. तो t-1 क्या होगा अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं और रिटर्न करते हैं, तो 1 0 0 माइनस x नॉट आ जाएगा, 0 0 0 माइनस y नॉट आ जाएगा, और 0 0 1 माइनस z नॉट आ जाएगा. और हमारे पास जो हमने यूनिफॉर्मिटी के लिए लगाया था 0 0 0 1, वो उसी तरह रहेगा. अगर हमने रोटेशन का करना है, वापस रिटर्न अपने पॉइंट पर जाना है, वापस उसकी रोटेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे कि कॉज माइनस थीटा कर देंगे और साइन माइनस थीटा, माइनस साइन माइनस थीटा, कॉज माइनस थीटा कर देंगे. तो अगर हमने ये कर लिया तो ये सिंपली इन्वर्स होगा ट्रांसलेशन का. सेम इसी तरह हम अगर इन्वर्स करते हैं स्केलिंग के लिए, तो वो भी हमारे पास 1/sx आ जाएगा, क्योंकि हम उसकी स्केलिंग रिटर्न कर रहे हैं. अब हम आते हैं प्रोस्पेक्टिव की तरफ. ये हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो इट्स आल्सो नोन एज अ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन. द पर्पस ऑफ दिस इमेज ट्रांसफॉर्मेशन इज टू प्रोजेक्ट 3D point, a 3D world point into a imaging plane. This gives an approximation to the image formation process, which is actually followed by a camera. हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं रियल वर्ल्ड की एक इमेज की फॉर्म में, तो वो हम कैसे करते हैं और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम इसको डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. और आज के लेक्चर के लिए हमारे पास इतना. हमने जो स्टडी किया कि रोटेशन, ट्रांसलेशन और स्केलिंग हम कैसे करते हैं 2D में और 3D में, तो इनको हम आगे लेकर जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और यही हम यूज़ करेंगे आगे प्रोस्पेक्टिव के लिए भी, कि वहाँ पर हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं 3D वर्ल्ड को 2D के अंदर. तो आज हमने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन देखी, और वो है ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग इन 2D एंड 3D. और फिर आखिर में हमने देखा कि अगर हम इन्वर्स लेते हैं तो हम बेसिकली वापस अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो भी हमने स्केलिंग की है या रोटेशन की है या ट्रांसलेशन की है तो हम उसको रिटर्न कर लेते हैं. तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इन टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह हाफिज़.